Hi students, welcome back in online classes. In today's video, we will read chapter number 3rd. Yesterday, we have completed chapter 2 and in chapter 2nd, we have learned about the pranayam, what is pranayam, what are the steps of pranayam and what are the benefits of pranayam. So, yesterday we have completed the chapter and some questions are left that I will provide you in today's assignment. But today here in lecture, in this video, we will read chapter number 3rd. Chapter 3rd. As you know that after completing the question answers of previous chapter, we used to start next chapter. But as we are because of the time limitation, we can't complete the chapter in one day or in 2 days. So whatever works you are getting in homework, that will be serial wise, means first you will complete the question answers of chapter first, then second, then third. So here today I am going to start the chapter 3rd. What is the name of chapter? The name of chapter is the rats and the elephants. The rats and the elephants. This story is about rats and elephants. Maybe you have listened about this story already, but today again we will discuss about this chapter. Let's see. Are we all of the same size? क्या हम सब same size के हैं? No. Second, can a similar animal help a bigger animal? Sorry. Can a small animal can help a bigger animal? क्या एक छोटा एनिमल एक बड़े एनिमल की हेल्प कर सकता है? You are often asked to help your younger sister and brother. Do you help them? आप हमेशा अपने छोटे भाई बहन को हेल्प के लिए बोलते रहते हैं, बट क्या कभी आपने उनकी हेल्प की है? How do your younger brothers and sisters help you? आपके जो younger means छोटे ब्रदर और सिस्टर्स हैं, वो आपकी किस तरह हेल्प करते हैं? How they help you? So let's start the chapter. Long ago, a group of rats lived happily in a forest. Long ago, बहुत समय पहले. Long ago, बहुत समय पहले. A group of rats, group समूह of rats, mouse चूहों का एक ग्रुप. Lived happily in a forest, रहता था happily खुशी से in a forest. एक चूहों का बहुत बड़ा समूह, बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत सारे रेड्स का झुंड, एक ग्रुप एक फॉरेस्ट में खुशी रहता था. One day, a herd of elephants passed. A herd of elephants passed through that area. Through that area means one day a group of elephants, a herd of elephants means more than one elephants are there in a group, then we can't call them a group, we should call them herd. So one day when the rats were playing, a herd of elephants passed through that area.
उस वहाँ से गुजरा यानी वहाँ से निकल रहा था। वेयर द रेड्स वर लिविंग, जहाँ पे रेड्स रहते थे। इन सर्च ऑफ वाटर, और किस लिए एलिफेंट्स कहाँ जा रहे थे एंड क्यों जा रहे थे? दे वर गोइंग टू सर्च फॉर वाटर, वो पानी की तलाश में वहाँ से निकल रहे थे। मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डेस्ट्रॉयड, मैनी होम्स यानी बहुत सारे घर वर डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड मीन्स तोड़ देना, टूट जाना या उसे खराब कर देना। सो मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डेस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट, एलिफेंट्स के पैरों के नीचे आकर रेड्स के बहुत सारे घर हैं वो टूट गए थे। सम रेड्स वर ऑल्सो किल, और कुछ चूहे भी मर गए थे। किल, किल मीन्स मारना। सो सम रेड्स वर ऑल्सो किल द किंग ऑफ रेड्स, किंग ऑफ रेड्स, चूहों का जो राजा था, चूहों का जो हेड था, मूषक राज। व्हाट वाज द नेम ऑफ हेड ऑफ रेड्स? वी कैन आस्क दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रेड्स, जो चूहों का राजा था उसका क्या नाम था? हिज नेम वाज मूषक राज। वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, द मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स मीन्स जो चूहों का जो राजा था वो किसके पास जाता है? एलिफेंट्स के किंग के पास, द किंग ऑफ एलिफेंट्स। वहाँ पे एक लीडर एलिफेंट्स का था और एक रेड्स का। जो रेड्स का लीडर होता है वो एलिफेंट्स के लीडर के पास जाता है एंड उसका नाम होता है गजराज, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हेड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। गजराज रिक्वेस्टेड यानी उससे रिक्वेस्ट करता है हिम टू टेक हिज हेड, यानी वह अपने ग्रुप को टेक अनदर रूट ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब पे जाने का। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। तालाब पर जाने का जो रास्ता है किसी दूसरे रास्ते के थ्रू वो अपने ग्रुप को वहाँ लेके जाए, क्योंकि इस रास्ते से जाते हुए उसके जो ग्रुप के जो सदस्य हैं उनके घर हैं वो टूट गए हैं और कुछ मेंबर हैं वो मर भी चुके हैं। ही एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्टेड स्वीकार करना, ईडी लग गया, इट मीन्स सेकेंड फॉर्म। So the king of elephants accepted the request of मूषक राज and told the elephants to take the other way, और अपने elephants को बोला to take the other way यानी किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए, without disturbing the rest। disturb का मतलब परेशान करना, तो चूहों को परेशान किए बिना किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए the king of elephants ordered his friends, the member of group। So मूषक राज was very happy to pleased with Gajraj। मूषक राज means the king of rats was very happy, वो बहुत खुश था and pleased with Gajraj, वह गजराज के इस डिसीजन से बहुत खुश हुआ। He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants in needed, and he promised the king of elephant that we are very happy, and they thanked him also, and he said that he promised, the king of rats promised to the king of elephant what? That rats would always be ready to help the elephants in needed, यानी जब भी elephants को कोई ज़रूरत पड़ेगी हम सारे rats
उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, यह सुनकर द एलिफेंट्स इन द हेड, जो एलिफेंट्स का ग्रुप था उसमें जो एलिफेंट्स थे, दे लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, और ये सुनकर वो हंसने लग गए जब मूसक राज ने ये कहा कि जब भी एलिफेंट्स को कोई हेल्प की ज़रूरत होगी हम सारे चूहे उनकी हेल्प करेंगे। ये सुनकर द मेंबर ऑफ हर्ड स्टार्टेड टू लाफ व्हाइल थिंकिंग, क्या सोच रहे थे, दैट हाउ दिस स्मॉल रैट्स कैन हेल्प अस, ये इतने छोटे छोटे से चूहे हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। आफ्टर अ फ्यू मंथ, फ्यू मीन्स कुछ, फ्यू कुछ महीने बाद, कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे, एक दिन, अच्छा दिन था, when the rats were playing, और सारे चूहे खेल रहे थे, they had a loud sound, उन्होंने एक जोर से आवाज़ सुनी, shouts of elephants coming from the direction of the pond, और उन्हें एलिफेंट्स की साउंड सुनाई दी, एलिफेंट्स के आने की या उनके ट्रम्पेट यानी उनकी जो आवाज़ होती है बोलने की वो सुनाई दी, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉन्ड, डायरेक्शन मतलब दिशा, एंड पॉन्ड मीन्स तालाब, तालाब की तरफ से एलिफेंट्स के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मूसक राज रियलाइज्ड, महसूस किया या उसे एहसास हुआ, दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, यानी एलिफेंट्स किसी खतरे में हैं, इसीलिए उनकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। He asked some of the strong rats, उन्होंने कुछ ताकतवर जो रैट्स उसके ग्रुप में थे उनसे पूछा, rats in his group to come along, उसके साथ जाने के लिए बोला, and went in the direction of the sound, जिस तरफ से साउंड यानी शाउटिंग चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी उसी तरफ मूषक राज अपने कुछ मजबूत कुछ ताकतवर रेट्स को लेकर के जाता है। नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास में, दे सो द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स कैप्ड बाय सम हंटर्स, और वहाँ जाकर मूषक राज देखते हैं कि वहाँ कुछ हंटर्स ने एलिफेंट्स को कॉट पकड़ा हुआ है, इन ट्रैप एक जाल में। द रेट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स विद शार्प टीथ, और जैसे ही उन्होंने एलिफेंट्स को पिंजरे जाल में बंद देखा, दे हैव स्टार्टेड टू कट द रॉप्स ऑफ द विद देयर शार्प टीथ, उन्होंने अपने तीखे दांतों से उस नेट को काटना शुरू कर दिया। एंड सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और थोड़ी देर बाद ही सारे एलिफेंट्स उस ट्रैप से फ्री हो गए थे। दे थैंक द रेट्स, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया, एंड सेड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उन्होंने सॉरी भी बोला कि हमने उस दिन कहा था कि आप तो बहुत छोटे हो, आप हमारी क्या हेल्प करोगे, तो उन्हें छोटा एहसास दिलाने के लिए उनका मजाक बनाया था, उसके लिए भी उन्होंने सॉरी बोला, एंड दे थैंक देम। So this was the story. There are some hard words like herd, a group of animals of same type, एक जैसे बहुत सारे एनिमल्स का जो ग्रुप होता है, that is called herd. Destroy, to damage something so badly that it cannot be used, किसी चीज़ को इस तरह से तोड़ देना या ख़राब कर देना, that we can't use that again, ताकि वो काम में नहीं आ सकती, we call that destroy. Route, way, रास्ता, pleased, happy and satisfied. Promised, told someone that you would certainly do something, किसी से वादा करना, promise वादा करना, realize फील करना, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, डेंजर पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, डेंजर लाइक वी कैन से खतरा, डायरेक्शन दिशा, ट्रैप पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ कैचिंग एनिमल्स, एनिमल्स को कैच करने का पकड़ने का एक इक्विपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैप, लाइक पिंजरा
Jal, we can say. Hunter, a person who kills, who hunts wild animals. So this was the chapter. Hope you understood. Thank you.